podcast. I am Anna. I am Shifali. I am Mohini और शिफाली what the girl? बस यार कुछ नहीं, दुनियादारी से परेशान हम सब. क्या हो गया है? Are you okay? Yeah, everything is good, but so I wanted to share this thing with you people. Okay. First of all, today's gup brought to you by our beloved Shifali. जो गप्पों में माहिर है. And for the audio listeners, हम एक चीज़ बता देते हैं. आज हम सब अपने पजामाज में बैठे हैं क्योंकि हम तीनों जिंदगी से परेशान हैं और हम बहुत टायर्ड थे. But we still didn't want to miss it. आज Tuesday है. कल वेंसडे, कल ही आपको लाइव मिल जाएगा. तो हमें था कि हम आज का दिन मिस नहीं कर सकते और हमारी बिल्कुल हिम्मत ही थी तैयार होने की. तो दिस इज द हालत. वी आर सिटिंग इन अ नाइट सूट हैविंग चाय, But we are sitting doing on the this for bed. you people, guys. Please हमें Yes. हमारे हार्ड वर्क को कंसिडर करना. अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सो प्लीज शेयर इट विद मोर पीपल. ये हमारा 3rd एपिसोड होने वाला है, सो वेरी एक्साइटेड. और 3rd एपिसोड में हम ब्रेक नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने कहा चलो नाइट सूट में तो नाइट सूट में सही, हम बट वील डू actually इट. किसी भी एपिसोड में ब्रेक नहीं लेना चाहते. हाँ. We would want to be consistent, stay consistent all throughout. और थोड़ा सा जगने के लिए आज मन्नत हमें पिला रही है चाय. So thank you for चाय this. बहुत अच्छी बनी हुई. Okay, so guys, I Hmm. wanted to, share this thing with you. So I have a very close friend, and she was dating a guy from like 2-3 years. Okay, so they were quite serious about each other. They were planning to marry and all, but somehow सॉरी it बट wasn't. आजकल चलता है 2-3 साल उनके जिन्होंने शादी का प्लान किया था. I agree. I agree as well. Okay, Otherwise, so- everybody is just casually out there and casually seeing each other. हाँ, Yeah, right. 6 महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं वो. I think 6 महीने भी ज़्यादा ही है. आजकल तो it's very honest and out in the open कि I want to see you casually. I am seeing other people along. I am seeing you and something like that. True. So that तो is 2-3 years तो सीरियस. हो गया ज्ञान. सुनाओ मैं कहानी. please continue. So okay, this is serious, ठीक है. तो पहले तो वो थोड़े मूड में आ जाओ. Okay guys, mood में आ जाओ. हमें पता ही नहीं है बात क्या है. मतलब आई विश हमारे पास भी वो मूड लाइट्स होती ना. अच्छा, चलो anyhow. हम यहाँ पे वो ऑडियो डाल देंगे. Jack. सन. अच्छा, okay. So she was dating this guy and they had the plans to get married, but somehow things didn't work out. So the guy she was dating, he was separated from his ex-wife. Oh. Like still वो सीन उसका चल रहा था divorce का. So the girl is our age. Yes. So age gap होगा फिर तो काफी. No, the guy is not that Old. aged or Okay. जो भी है. Okay. So due to this reason only things didn't work out between them, and they were on the verge of they already broke up. So my अच्छा. friend and her. So पहले उसका उसकी ex wife मतलब wife के साथ भी नहीं चला, and then उसकी जो girlfriend बनी your friend उसके साथ भी नहीं चला. हाँ, so मतलब नहीं चला, but ऐसा नहीं था कि breakup हो गया. अच्छा. ठीक है. Right. तो The मतलब complicated on वाला off situation. complicated. Right. Yeah, right. उसके Okay. बाद Exactly. they dated So for 2-3 years. so And- अभी भी मतलब ये अभी बहुत recent की बात है. The guy was still trying कि मान जाए, and अच्छा, he was right. apologizing and everything. Do you mind sharing कि उनका breakup क्यों हुआ था? I told you the reason ना, because things were, जो लड़का था उसका divorce case अभी चल रहा था. अच्छा. So the girl So was it like was this reason my only. friend, the girl. I don't want to name her, so XYZ. ठीक है. नहीं, let's name her Reena. Tina is such a poor name. We come up with a good name, yeah. यार Reena ही आया. Let's keep it in Ayan. Inayat is a good name. हाँ, Inayat. Okay. Okay, We so like it. We like Inayat. Already. चलो नामकरण हो गया यार मेरा. ठीक है, तो इनायत ने And let's name the boy also. बॉय का नाम कुछ सिद्धार्थ. सो इनायत ने सिद्धार्थ को बोला कि मतलब मैं अपनी फैमिली मतलब मैं तेरे लिए तब तक स्टैंड नहीं ले सकती जब तक यू नॉट डन विद योर केस. Of course. मतलब एटलीस्ट डू समथिंग. तो उसका वो चली. द गाय वाजंट सेइंग नो अबाउट दिस. ही वाज लाइक कि चल रहा. तो अभी भी वो सेपरेट नहीं हुआ लड़का. Okay. सिद्धार्थ. Alright. ठीक है. So what happened was, so eventually they broke up. Okay, so even after breakup, the guy was trying कि नायक मान जाए and जो भी है, they were trying to get back and जो भी. So what happened was, okay,
So now there's a third girl involved other than Siddharth's ex-wife or Okay. wife. Oh. Okay, so let me name her Reena now. अच्छा उसका नाम रीना ठीक है कोई बात नहीं, चलो है ना. हाँ. So oh my god, I don't know ये समझ भी आएगा तुम्हें या नहीं. So what happened was there was some girl Reena, okay, and when Inayat asked Siddharth ki who is she, तो Siddharth just said कि मतलब like she's a rape victim, I'm helping her out. Oh. This is before they broke up. Yeah, this while they were dating. Like Inayat saw कभी उसकी calls आई हुई थी या जो भी है. Reena अच्छा. की. Reena She की. asked So Siddharth. she asked Siddharth कि who is she, so he was like कि she's a rape victim and I'm helping her out. What for? Like जो भी, अच्छा. like she's a Genuine friend and friend, जो right, भी, right. जैसे भी. हाँ. Okay. So now like Siddharth and Inayat, they have already broken up, right? तो उसके बाद one day I don't know कैसे इनायत को रीना की कॉल आई कि I want to meet you and कि तेरा और how do you know Siddharth? So Reena was asking Inayat how do you know Siddharth? But if Reena बाद में आई ना पिक्चर में Inayat और रीना को somehow she got Inayat's number. I don't know that story. ठीक है, जो भी है. So हुआ ये जो मेजर स्टोरी है, वो कौन किसको कैसे मिला वो मुझे इतनी डिटेल पता भी नहीं है. ठीक है, हुआ ये कि सिद्धार्थ एंड रीना वर at some cafe or something. ठीक है, so Inayat, my friend, she decided कि मैं वहीं जाके देखती हूँ कि what's happening. तो रीना ने बताया होगा ना कि हम यहाँ तो आ जाओ. Exactly. So Reena was asking on phone. Inayat was like, just How tell do me. you know? No, Inayat was like, just tell me where you people are and मैं वहीं आके बात अच्छा, करूँ. अच्छा, on the spot only. Okay. Okay. हाँ. So वहाँ जब गए, guys, I can't imagine this really happened. So the guys were dating for like 2-3 years, as I told you. वहाँ जाके Siddharth was like, who are you? I don't recognize you. इनायत को. Inayat को. Oh. Your friend Inayat. Yeah. He was And they were dating for 2-3 years. 2-3 They years were about to get in a married. serious relationship जहाँ पे उसके घर वाले भी involved थे. किसके सिद्धार्थ इनायत? के पेरेंट्स को पता था इनायत के बारे में. Oh. Okay, then she एक used to. सेकंड यार, सिद्धार्थ के पेरेंट्स क्या, पहले सिद्धार्थ की एक्स वाइफ, फिर सिद्धार्थ की ये गर्लफ्रेंड इनायत. So And I'll tell you ना what happened was, जो एक्स वाइफ है तो चलो जो भी है उसका तो सीन सॉर्टेड, वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, राइट? तो जो भी दे यूज्ड टू वेलकम इनायत वेरी वेल कि जब कभी जब घर आना, As they were dating. Yeah, as they were dating, Right. they used to have dinner and all together. Not as a friend, but as like a potential partner. who Right, had introduced her. right. Okay. है ना? तो मतलब उस बंदे ने मुंह पे मना कर दिया कि मैं तो जानता ही नहीं तुझे, who are you? Ouch. that's ठीक है, that's heartbreaking. मतलब आई डोंट नो, मैंने जब ये बात मुझे पता लगी, आई वाज लाइक हाउ कैन दिस हैपन. ओके, एंड देन इनायत वाज लाइक ओके, मतलब मैं, यू डोंट नो मी एंड यू डोंट नो माय फ्रेंड्स. मतलब इनायत के पास का पिक्चर नहीं कि उसकी और सिद्धार्थ क्यों दिखा देती है उसको रीना को. आई डोंट नो, मैंने इतना पूछा नहीं है, जो भी है. मतलब ऑब्वियसली ऐसे उसने बहुत सारे इंसिडेंसेस बताए. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार वो इनायत का भी तो पास्ट हो चुका था ना. Right. शी वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन गिविंग हर डिटेल्स टू a third person, right? Makes But sense. she was like, you don't even know my friends, so she went with her other 2 friends. Inayat. Okay. Then she went. Okay. So she was, so Inayat was like, you don't even know her, you don't even know him. कि we used to spend all the time together. Rather पूरे ग्रुप को वो जानता था जो भी है ना. तो he was like, absolutely, I don't know तुम क्या ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, मैं किसी को नहीं जानता. वो कर क्या मतलब बेसिकली. And then Inayat was like, okay, so your parents also don't know me. So जब parents की बात आई तो Reena told Inayat that I am also introduced to Siddharth's family as Siddharth's partner. So apparently they are also dating at the same time. In a serious relationship. नहीं and you sure breakup के बाद मिली ना रीना तो. no, She was already introduced as a friend, ना rape victim. पहले से. वो वाली चीज तो he was So telling for me. example, अगर सिद्धार्थ और इनायत 3 साल से डेट कर रहे हैं, so रीना और सिद्धार्थ भी पिछले 1.5-2 साल से तो कर रहे हैं. Oh. So he was simultaneously dating that girl as well. And लड़का तो लड़का, लड़के के parents भी, they are giving the same treatment to Inayat and they are giving to Reena as well. To Inayat, to Reena, and उनकी एक पहले बहू थी. Exactly.
क्या मतलब उनको दिख नहीं रहा उनका बेटा क्या कर रहा है और मतलब कितनी लाइफ खराब की Okay, so when this happened, Inaya decided to call his parents. Of course, हाँ. Okay, to tell them what's हाँ going जब on. and बताई था everything. जब जिसके पेरेंट्स So when this is the most shocking part, you guys. जब इनायत ने उसके पेरेंट्स को कॉल किया and you know she told कि ऐसे मैं ये situation is like that, हाँ. they were like we don't know who Siddharth is. What the fuck उनका बेटा है वो They decided to disown him at that point of time कि उनको आंसर ना करना पड़े. They were like हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो. उनको ये होगा ना फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही होगी कल को मारेंगे इसमें यूज हो जाएगा कुछ भी बट मतलब व्हाटएवर मुझे इट तो- वाज इट्स सो शिटी I'm पहले तो thinking सपोर्ट कि किया इतने guts उस it's not even about guts मतलब अगर मैं लड़के की बात करूँ अगर morally भी ना भी देखें first thing he's already involved in a case. Yeah. he is not separated yet Exactly तेरे पास इतना वेला टाइम है हाँ, and you have the exactly. guts to do this to two other other- girls. I mean you're already involved in a legal case. And so basically Reena called Inayat na in the first place. That's how she went to the cafe or wherever they were. Yeah. So maybe to Reena also Inayat was somehow introduced like that only. Like he like क्या she's पता a friend or नहीं they would be जैसे separate यार school. यू डोंट नो सी इनायत को अगर लग रहा था कि रीना रेप विक्टिम है क्या Exactly. पता रीना She को was also- इनायत के बारे में ये बात बोली Exactly. Possible. So मतलब यार, क्या? relationship से ना भरोसा ही उठा हुआ है. Oh my god. I think you know dating in this generation as a Gen Z and as a millennial हम क्योंकि दोनों ही हैं Yeah. तो I think that is very difficult because हम लोग we are not at least for me I can say that I am not that cool कि मैं Gen Z की तरह casually date कर लूँ casually है ना 2-3 relationships हो I am hanging out I am whatever है ना one night stands or whatever वो I don't like I personally don't like that and I don't think I have the time or the energy कि मैं 2-3 जगह उतना effort डालूँ for that matter and as a millennial I would say कि you know in this generation not everybody has that mindset तो वो like minded people मिलना is so difficult you know finding true, somebody that thinks like you or you know in that same phase as you कि हम लोग ना we are like 100% committed to each other or जो भी है I think that is very difficult these days. So जो I would like हमारा- to say मतलब जैसे you were talking about your own preferences. So मुझे ये लगता है कि चलो यार वो तो अपनी choice है you know whether you want to go for casual dating or a serious one. Of course. But दूसरे बंदे को बेवकूफ बनाना is not right मुझे at लगता है all. कि अगर जैसा casual you relationship में should हो be on ना the same page. हाँ, Both the जैसे- persons should be on the same हाँ page. भाई अगर एक बंदे की तरफ से कैजुअल है तो दूसरे को ये पता होना चाहिए और Exactly. उसकी तरफ से भी कैजुअल होना चाहिए Exactly. Yeah. So if that guy, if you are anyhow listening to this our podcast, it's very shameful for you and your family, Yes. whatever you're doing. same from me Or any other guy out there, if you are listening to this podcast, if you are doing something like that to two other people or to other whoever, you know, Yeah. that is really sad, and I think you should work on yourself. I think you should I think the give person that should time go to to a therapist yeah, and True, you should true. give I that totally agree with 2-3 लोगों वाला time to yourself and think about it कि मैं actually 2 लोगों की या कितने भी लोगों की life खराब कर रहा हूँ. exactly पहले wife की then your friend and then Reena मतलब like what the अच्छा गाइज आई नीड अ सजेशन सो बेसिकली मेरी फ्रेंड ने मेरे से सजेशन मांगा था तो मैंने तो अपना दे दिया पर मैं तुम मुझे Right. बताओ हाँ. मैं तुम्हें सिचुएशन बताती हूँ एंड देन यू गाइज टेल मी कि मैंने जो दिया कि वो सही था कि नहीं सो माई फ्रेंड वॉज डेटिंग अ गाय सिंस नॉट सिंस बेसिकली उसने उसको +1 +2 में डेट किया था सो अभी तो हमारे को मास्टर्स की अभी 2 साल हो गए राइट सो उसने उसको हाई स्कूल में डेट किया था तो तब उनका काफी क्यूट रिलेशनशिप था मतलब मैं भी उनके साथ हैंग आउट करती थी दोनों के साथ I'm trying to figure out वो कौन सी friend होगी. एग्जैक्टली हम पर वो मतलब और दूसरे Not group में थी us. हाँ दूसरे ग्रुप में थी हाँ. तो ना मैंने काफी हैंग आउट किया उन्होंने काफी जैसे लवी डवी I think +1 +2 में वैसे हाई स्कूल वाला टाइप हाँ क्यूट ही होता है. हाँ है ना बड़ा I think. क्यूट सा था हाँ. सो द थिंग व्हाट हैपेंड वाज वो लड़के ने उस मेरी फ्रेंड को उनके नेम रखते हैं चलो हम बताओ Guy's name can be Aryan. I really Okay. like that name.
ओके है ना? लड़के का नाम ए से आर्यन ही is रखते fine. थे, लड़की का भी अदिति एंड आर्यन. क्यूट कपल. अभी एक्चुअली दे आर इन क्यूट कपल. Aditi. Aryan and Aditi. हाँ, So Aryan proposed Aditi in 9th standard also. okay. So 9th में Aditi का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसको तब बनाना नहीं था, तो उसको लग रहा था कि ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मतलब नई नई बॉयफ्रेंड तो गलत चीज होती है ना. तो उसने तो गलत चीज होती है, बिगड़ी हुई लड़की है. जिसका बॉयफ्रेंड है वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है. दैट वाज द मेंटालिटी. हाँ 9th क्लास में. तो तब के टाइम में ना, तो ना अदिति ने अपने भाई को बता दिया एंड अदिति का भाई जाके आर्यन से लड़ाया, क्योंकि स्कूल में तब यही होता था सिचुएशन. Okay. ठीक है. एंड उसने उसे थप्पड़ मार दिया. बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई थी. उसके बाद 2 साल आर्यन और अदिति दूर, काफी दूर. फिर उसके बाद क्या हुआ, +1 में बाय चांस सेम They got back together. तो ट्यूशन पे मिले, तो फिर उनकी फिर बात होनी शुरू हो गई. देन आर्यन प्रपोज्ड अदिति अगेन. तो अदिति को लगा था कि चल यार ये बंदे ने 2 साल से मेरे को कह रहे हैं, तो अब चल मैं लेट्स डू. बड़ी भी हो गई. अब मैं बड़ी हो गई. अब बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात भी नहीं रही. अब बॉयफ्रेंड बनाना कैजुअल बात है, अब मैं बना लेती हूँ. So they she said yes and they started dating. बहुत ही cute relationship था, lasted for 6-7 months. So what happened was कि आर्यन ने वो 2 साल में एक और लड़की को डेट किया था. तो while he was dating Aditi, he messaged his ex-girlfriend that I miss you. Okay. Oh. और उसकी ex-girlfriend ने ये बात अदिति को बता दी. तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और अदिति भी फ्रेंड्स थे. क्योंकि तब ऐसे लगता था सबको कि एक्सेस फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो उसने एक्चुअली फ्रेंड्स हो सकते हैं. आई आल्सो एग्री विद दैट. सी मेरे को नहीं ऐसा लगता. It depends on the relationship. कमिंग बैक टू अदिति एंड आर्यन. हाँ तो फिर है ना, तो फिर उसने बता, मतलब बेसिकली मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, बहुत पुरानी बात है और मेरी बात है जो मुझे डिटेल से याद होंगी. तो कुछ ऐसा हुआ तो पता लग गया बेसिकली. तो फिर दे ब्रोक अप एंड फिर टच बाय बाय. मतलब उसने कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन का रीजन या वो. सो ट्विस्ट कम्स नाउ. सो अभी 3 साल पहले क्या हुआ, दे मेट ऑन अ वेडिंग. तो बेसिकली बोथ वर वेडिंग गेस्ट. किसी के घर की शादी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि अच्छा तेरे भाई की शादी में आ गई, मेरे को पता नहीं था, ऐसा नहीं था सिचुएशन. They met on a wedding, not really met, they saw each other on a wedding, and then the guy messaged again and he was like, I'm so sorry for what happened, and he apologized, he regretted basically. And मतलब ना he was very मतलब वो heartfelt. but अब हुआ क्या, इतने टाइम में, अब इतने साल हो गए थे, तो अदिति स्टार्टेड डेटिंग अनदर गाय, क्योंकि अब तो बॉयफ्रेंड कैजुअल है. अब बॉयफ्रेंड रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कैजुअल नहीं. अदिति वाज इन अ सीरियस रिलेशनशिप. तो शी वाज डेटिंग अ गाय सिंस 3-4 years. मतलब उसको 3-4 साल हो गए थे मतलब उसको डेट करते हुए. तो उसने सीधा कह दिया आर्यन को, यस लुक आई रियली अप्रिशिएट कि तूने बोला कि यू आर सॉरी, इट्स ओके. Also, I would like to say that closure is also somewhere very important. हाँ. कि closure होना चाहिए कि and if the guy is owning to his own shit that he has done or whatever, वो अच्छी बात, I would say कि वो काफी अच्छी बात. तो पहले जैसे उसने बोला सॉरी वॉरी, तो अदिति ने कह दिया यार इट्स ओके, कोई बात नहीं है ना, लेट इट बी, रात की हाँ छोड़ा. तो देन ही वाज लाइक कि नहीं लेट्स गेट बैक टुगेदर, आई रियली मिस यू. तो फिर अदिति ने बता दिया कि आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप एंड ऐसा नहीं, मतलब अब ये ऐसे नहीं होता कि तू कभी भी उठ के आ जाएगा स्टफ. उसके बाद उस शादी के बाद मतलब उनकी एक ही बार बात हुई एंड काफ़ी बात हुई, आधा पौना घंटा टेक्स्ट पे. उसके बाद कोई बात नहीं. फिर देन आर्यन मेंट बाहर, कहाँ गया था, मतलब कहीं बाहर गया था, आउट ऑफ इंडिया. तो अब वो बाहर ही रहता है फिलहाल. Let's say वो गया जर्मनी. ओके हाँ, तो ही वेंट टू जर्मनी. तो फिर ही वेंट टू जर्मनी एंड फिर अब क्या हुआ, अब 1 साल पुरानी बात बता रही, वो 3 साल पुरानी बात थी. अब 1 साल पहले क्या हुआ, he came to India for something, मतलब घर वालों को मिलने आया है कोविड के बाद. तो उसने अदिति को मैसेज किया. तो उसने अदिति को फिर मैसेज किया कि यार आई एम बैक, प्लीज मीट मी, आई वांट टू टॉक.
तो उसने अदिति ने बहाना मार दिया कि उसने ना एक्चुअली अपने जाने से पूछा भी थोड़े दिन पहले था, 3-4 दिन पहले, तो अदिति ने कह दिया आई एम सो सॉरी, आई डोंट, मतलब कुछ भी कर रही वो मतलब उसने मना कर दिया। ऑप्शन थी, वो चाहती तो शायद मिल भी लेती, उसको मिलना था नहीं, उसको था यार क्या करना है। अदिति अभी भी किसी और को डेट कर रही है। अदिति उस 3 साल वाले लड़के को डेट कर ही रही है। हाँ, वो उसे आज भी कर रही है, मैं साल पुरानी बात नहीं, पर उस लड़के को आज भी डेट कर रही है। ओके, अच्छा ये भी साल पुरानी बात है। ओके, है ना। तो साल पहले उसने मना कर दिया कि नहीं यार मैंने नहीं मिलना, अब थोड़े दिन रह गए तेरे जाने को, तो उसने ये बोल दिया कि थोड़े दिन रहते हैं, अब मैं बिजी हूँ थोड़े दिन, तो फिर लेट इट बी। तो अब क्या हुआ है, जो अब रीसेंट बात है, an eternity later आर्यन मैसेज अदिति अभी 2-3 हफ्ते पहले कि यार आई एम कमिंग बैक टू इंडिया, इस बार मैं तेरे को 1.5 महीना पहले बता रहा हूँ, प्लीज मीट मी। अच्छा, इस साल 1.5 साल के बीच में उनकी हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, cordial, it was cordial। हाँ, तो ओवर द मैसेजेस, हाँ टेक्स्ट पे, है ना, ऐसे बस वो हैप्पी बर्थडे बस, मे गॉड ब्लेस यू भी नहीं, तो मतलब बहुत ही ऐसे है ना। तो अब तुम्हें बताओ, तुम्हें मतलब मैंने तो अपना दे दिया ओपिनियन, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब उसको ऐसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ शिफाली, तो मिलना ना मिलना के बारे में तो आते हैं बाद में। फर्स्ट थिंग आई थिंक जैसे हमारे भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स होंगे लाइक इन सेम जेंडर ऑल्सो, जिनको हम सिर्फ मैसेज भेजते हैं, है ना, हैप्पी न्यू ईयर या कुछ भी, है ना, ऐसे फॉर्मली। आई डोंट थिंक द अदर पर्सन ओज अस अ मीटिंग फर्स्ट। राइट, मतलब ऐसा नहीं है। और एंड व्हाट वाज दिस नॉनसेंस कि मतलब अब मैं तेरे को 1.5 महीने पहले बता रहा हूँ तो मिल लियो। हाँ, मतलब टेक आउट टाइम कि पिछली बार अगर तू मेरे को 4-5 महीने पहले भी बताएगा तो भी मैं तब देखूंगी ना कि तेरे को मिलना है कि नहीं मिलना, एंड व्हाट इज माय मेंटल स्टेट एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, या जो भी है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। इट डिपेंड्स ऑन दैट, इट डजंट डिपेंड ऑन यू इन्फॉर्मिंग मी वेदर यू कमिंग और नॉट, ठीक है, दैट थिंग। और आई टोल्ड यू कि मैसेजेस वाला भी मतलब इट वाज वेरी फॉर्मल, तो आई थिंक इसमें कुछ मिलने ना मिलने से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है। मतलब मेरे को जो लगता है अदिति को अपना ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि उससे कितनी बात हो रही है। अगर शी वांट्स टू मीट राइट नाउ तो मिल भी सकती है एज अ कैजुअल। 6-7 साल से डेट कर रही है, उसका सीरियस बॉयफ्रेंड है। As I told you कि मुझे लगता है कि exes can be friends. So if they are friends already, मतलब चाहे formal friends हो या जो भी है, so a formal meeting yes she can, but अगर ठीक है उसका if she's into some other guy या और उसको लगता है कि जो आर्यन है उसकी intention is still the same, like he wants to get back and all, then I think नहीं मिलना चाहिए. This is my take on that. Okay, so I would like to add to whatever Shefali said कि the thing where you said कि the guy that he is the girl is currently seeing, I think उसका take भी is somewhere important given कि अगर Aditi wants to meet Aryan right as of right now, अगर वो मिलना चाहती है then I think she doesn't owe asking that guy that she is seeing कि मैं मिलने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पहली बात तो ये। But if that is happening then first of all that he should be aware, हाँ, right? And मुझे तो लगता है कि हेल्दी रिलेशनशिप होता ही हुआ है कि जब आप डिस्कस करते हो पूछते नहीं, right, है ना? I agree. तो अगर इनायत if she even is इनायत इनायत तो बेचारी रो रही है, अदिति खुश है। ऐसा ही होता है जब नया नामकरण हुआ हो ना। So Aditi it is. Aditi, I think it's up to her, but I don't think पहली बात तो ये कि उसको वैसे हैप्पी बर्थडे और वो सब मैसेजेस they don't count, चाहे वो 3 साल पहले के हो चाहे वो एक इटर्निटी पहले के हो, they don't count because it is very formal, ठीक है। then this thing also कि 1.5 महीना पहले बता रहा हूँ, no point of that. बेसिकली दीदी ने पिछली बार कहा था ना कि अब तूने मेरे को अब बताया है कि तू आया है, उसने बहाना मारना था कि अब तो तेरे 3-4 दिन ही रह गए जाने को, तूने कौन सा मुझे पहले बताया था तो अब नहीं मैं मिल सकती। बट ये बोला था ना इसलिए something very silly है वैसे भी वो 1 साल पहले बताया था ना, चलो जो भी है whatever। हाँ, 1 साल पहले they were about to meet or whatever, पहले भी उनकी एक मीटिंग होने वाली थी 1 साल पहले। अब वो 1 साल बाद जब वो दोबारा आ रहा है then he is saying कि अब मैं 1.5 महीने पहले बता रहा हूँ तो अपना टाइम फ्री रखियो। It is like that. कितना stupid है ये। Exactly. So क्या नाम था लड़के का? आर्यन ना? So Aryan, if by chance you are watching this podcast, this was really stupid of you
टू से कि मैं 1.5 महीने पहले बता रहा हूँ तो तेरे को मिलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता भैया। Considering also if you have had a discussion about the girl dating कि अदिति डेट कर रही है already, for your first thing even if you wanted to meet is अच्छा अब भी this जब thing. आदित्य और आर्यन की बात हुई ना, हाँ. जब उसने बोला हाँ. कि मैं आ रहा हूँ, तो आर्यन ने आगे से पूछा कि व्हाट आर योर प्लान्स ऑफ गेटिंग मैरिड। अच्छा. तो अदिति ने बहुत क्लियरली बोल दिया मीटिंग द पेरेंट्स दिस ईयर एंड देन नेक्स्ट ईयर में भी मैरिज। तो पता क्लियर है कि अच्छा ये बॉयफ्रेंड तो है। Then I think it would have been cordial for Aryan to ask कि if it will be okay, not कि मैं 1-1.5 महीने पहले बता रहा हूँ, if it is okay for them. नहीं वो तो उसने अभी भी पूछा ही, पर उसने बोला कि आई वांट टू मीट। तो फिर कि पर मैं तेरे को चल पहले ही तेरे को आइडिया दे दिया कि मतलब बाद में ये मत बोलियो कि ये बहाना मत लगाइयो कि बहुत लेट बता रहा So हूँ। what is your final take? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? I don't see a point है ना? in it कि मिलना And what about you, by the way? हमारी सजेशन तो ले यार ली। देख, मेरे को तो लगता है कि इट इज हर पर्सनल कॉल, Of और course. प्लस वो जिस स्टेट में अभी है अपनी लाइफ में उसे नहीं फर्क पड़ेगा अगर वो कह भी दे आगे से कि हाँ भाई आई स्टिल वांट अ डेट, तो वो बोल देगी मतलब कि यार देख हम, और वो बहुत क्लियर कर चुकी है ये बात पहले भी, उसने 3 साल पहले भी बताया था, साल पहले भी बताया था और अभी भी बताया है। तो अदिति के अकॉर्डिंग तो अगर वो भी मिलती भी है तो आर्यन को पता ही है right कि she is रिलेशनशिप तो भूल जाओ। that is what I'm saying ना, that here बट what is अदिति को ये लग रहा था फिलहाल जब मेरी उससे बात हुई और मुझे भी उसकी बात सही लगी, वो ये थी कि आर्यन को ना बहुत क्लोजर चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो रिग्रेट से डूबा पड़ा है, क्योंकि वो यही बात सॉरी वाली बहुत बार बोल चुका है। जब भी बात होती है यही बात होती है कि आई एम सॉरी कि तब मैंने से गलती हो गई। Okay, sorry to cut you down, but मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ। Like you also mentioned closure is important, but I don't agree with this. मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं फ्रेंडशिप्स में कि पहले ना इनिशियली मैं भी यही सोचती थी कि यार कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, अगर एक क्लोजर मिल जाए ना, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द मेंटल स्टेट। right Okay, you know, it helps you to move on from that whatever My is going on. perspective is the same, ठीक है? yeah. Yeah, you would think the same, I know. But मतलब with time I have realized, but कि कई बार ना हम उस closure को we want that closure so bad that we keep seeking for it, and we do Okay. things to get that closure. तो So यहाँ that पे is ये what I'm सिचुएशन है, saying. हाँ, यहाँ पे आर्यन की लाइफ में तो वो चीज है, अदिति तो भूली हुई थी आर्यन को उसकी लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। वो आर्यन ने मैसेज कर दिया तो अच्छा याद आ गया कि अच्छा इसने पहले भी बोला था, अच्छा इसने उससे पहले भी बोला था, है ना। तो फिलहाल तो अदिति खुद भी अभी ऐसे उससे तो कह दिया हाँ ठीक है मिल लेंगे, मतलब ऐसे हाँ ठीक है भी नहीं, पर हाँ चल वील सी। तो पर depends अब वो मैं वो 1.5 महीना मैं तो अपना और 1.5 देखूंगी। महीना है उसके पास बहाना सोचने के लिए अगर उसे नहीं मिलना हुआ हाँ, तो। of course तो मैंने तो यही बोला है कि भाई तू अपने एक बार तू अपने बॉयफ्रेंड से भी बात कर ले, हाँ that is what I said है ना, कि वो first कि thing ये ना हो कि वो जिसको मिलके मुझे कुछ लगता बनना है- भी नहीं, उसके चक्कर में तू ऐसी ही लड़ाई कर ले अपने of बॉयफ्रेंड course से। would you like to continue this song for कभी Aditi? कभी अदिति जिंदगी गा ले यार। में कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। हो गया। मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको कोई सीख मिली हो, आपने हमें कुछ सिखाना हो, हाँ Audience को कुछ सिखाना हो। ऐसा है actually because I मतलब मेरा I have a known and she was seeing this guy so आप भी नामकरण कर दो ना। थोड़ी सी बात बता के इस टाइप के लोग हैं, नाम हम रखेंगे। Is it cute? Oh yeah. okay, Backstory थोड़ी सी। we do not like the guy अच्छा we know him. no मतलब You she know, you and your मतलब friends. हम लोग पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें नहीं पसंद अच्छा, अच्छा, इट अच्छा। इज अ बैड थिंग ठीक है, देन लड़के का नाम रखते हैं राघव। लड़की का नाम सुरेश ही रख रहे हैं, पहले नहीं Oh रखा my था God. बहुत ठीक है, गंदा नाम है सुरेश, तो सुरेश ही सुरेश। रखते हैं। यार ठीक है। ऐसे गंदा नाम नहीं है, अगर कोई सुरेश ये हाँ, देख रहा है तो It's okay. ठीक है, मतलब सॉरी इसको माफ सुरेश करना। जी, माफ करना हमें। सुरेश लड़की का नाम कमला रख दे। Oh my God. हाँ नहीं यार, नहीं लड़की है। लड़की तो इज नाइस, लड़की is your friend. लड़की इज और माय लड़का is your नो friend. लड़की इज माय Okay. अच्छा। Like, सुरेश यार इस एक्ट्रेस का क्या नाम, जूही रख दे? कियारा। कियारा कियारा? हाँ कियारा इज नाइस। हाँ जी, सुरेश। So basically, Kiara was dating this guy Suresh, and उनको हो गया था टाइम
I think it had been almost 2-3 years as well. So basically, Suresh somehow ended up with Kiara, who was already too good for him. What I was told कि बीच में during this time Suresh had cheated also on Kiara. तो सुरेश के पास बंदियां भरी हुई है. Okay. ठीक है, सुरेश है वो, फिर भी उसके पास बंदियां भरी हुई है. वो बोल तो रही है such a powerful name कि उसके पास बंदियां भरी हुई, like not exactly So भरी हुई. Suresh cheated on Kiara. Yes. And somehow Kiara or they overlooked. They you know. ठीक है. Let it be, कोई बात हाँ, नहीं, करके हो आगे जाता है. हो गया. Somehow Kiara, as I already said, that Kiara is a kind-hearted girl, and she was like कि चलो let's forget about it. Honestly, if I would have been in that situation, मैं नहीं करती. But ठीक है, चलो. 2 people, they only are responsible for whatever you know is happening in their life. ठीक है, तो क्या हुआ that so basically Suresh lived in a flat of his own. ठीक है, He lived alone. he lived alone away from his parents. Okay. ठीक है, independently used to stay, and that उस flat में it was a shared flat basically. Okay. ठीक है, तो the other room was shared by some other guy, as far as Kiara knows. And I think इसमें कुछ झोल है. so हाँ, तो लिव इन में रह रहा था वो. so basically जब Kiara आती होगी तो छुपा देता हूँ. अरे बाबा, अरे इतनी जब वो assumptions? लड़की ऑफिस जाती होगी तो कियारा को बुलाता होगा. नहीं मेरे को लगता है कि अच्छा Kiara को बुला. हाँ. Kiara. हो सकता है. Okay, so basically, what happened was कि the girl that Suresh cheated with. Let's Beach name her. Let's name her. कनिका. हाँ ठीक है. नहीं. ये Let's name her क्या? Pooja. मेरे को easy नाम दो यार, मुझे इतना difficult नाम ना दो. Let's name her Pooja. ठीक है. ठीक है? चलो कोई पूजा ठीक है? की पूजा करनी चाहिए. पूजा चीट करा रही है यार. क्या पूजा चीट क्या करा रही है? सुरेश चीट कर रहा है. अरे सुन तो लो बाबा. पूजा is the other woman, you know. But I have a big discussion on this also. Okay, so Kiara and Pooja know each other. And not know as in they're not good friends, but they know. जैसे you know कियारा ऐसे. हाँ, उतना ही. They know each other about Through Suresh only. अच्छा. जानते भी अच्छा. सुरेश के through ही अच्छा. हैं. सुरेश is a powerful man. सुरेश is a powerful person. जानते भी वो सुरेश के थ्रू ही हैं. And Pooja is basically somebody that works for Suresh. So somehow what I got to know Kiara से कि Suresh still accepted कि हाँ I have cheated on you. जब भी उनका बीच में हुआ था, जो भी सीन हुआ था, सुरेश ने एक्सेप्ट कर लिया, बट पूजा नेवर एक्सेप्टेड कि ऐसा कुछ भी, बिकॉज दे न्यू इच अदर ना. सो सुरेश का जो अदर फ्लैटमेट था, दैट वाज अ गाय फॉर ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल. ठीक है, उसकी भी बंदी आती थी. सो इट वाज अ चिल, मतलब चिल फ्लैट काइंड ऑफ अ थिंग ना. तो क्या हुआ दैट द अदर पर्सन, द अदर गाय मूव्ड आउट, एंड वहां पे रहने लग गई पूजा. Okay. उस फ्लैट में. नहीं तो ये बात कियारा को नहीं पता था. पता थी. अच्छा पता थी. सो और कियारा को पता था कि एक बार ये चीट कर चुका है पूजा के साथ मेरे पे, और फिर अब पूजा रहने भी आ गई है. पूजा, सो बेसिकली हाउ शी फिगर्ड आउट कि पूजा वहां पे रह रही है. उसने, सुरेश ने नहीं बताया था कि पूजा वहां पे रह रही है. Okay. हाउ शी फिगर्ड आउट वाज शी वाज एडेड थ्रू अ फेक अकाउंट. नाउ दैट पूजा गर्ल, शी वेंट लाइव और कुछ तो स्टोरी डाली उसने सुरेश के घर में, एंड कियारा फाउंड आउट कि ये तो सुरेश का घर घर है. मैंने देखा हुआ है. हाँ. So Here comes the twist. So Suresh was out of station for a few days. मतलब I think not a few days, थोड़े ज़्यादा ही दिन हो गए होंगे, 20-30 दिन लगा लो कि वो बाहर ही था. And that is when Pooja went live. So basically Kiara went directly to the flat after seeing this. कि चल आज तो मैं पूजा हाँ, आज तो मैं रंगे देखते हाथ कि भाई पकड़ती क्या हूँ. चल रहा है. हाँ. ठीक है. And वहाँ पे पूजा रह रही है. वो उससे जाके पता लगता वो उसे जाके पता, मतलब अब तो Instagram के लाइव Suresh was out of the town. आउट ऑफ टाउन. पूजा किसी और लड़के के साथ नहीं. रहेगी. पूजा वाज लिविंग देयर. Okay. बेसिकली तो उसने जब उससे पूछा तो उसने बोला कि मुझे तो 1-1.5 महीना हो चुका है रहते हुए. ओके तो they were kind of in live-in. या पर So वो basically- बेसिकली यहाँ so नहीं था, तो ऐसा basically, नहीं हो हाँ. सकता कि वो चला गया तो नहीं, पूजा रही. वो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन ही वाज देयर कॉमन पीरियड था बीच में. था बीच में. हाँ. एंड भाई लोग कैसे चीट कर लेते हैं. सो बेसिकली दिस इज मैं समथिंग तो ये दैट सोच रही हूँ
कि जैसे पूजा कियारा ने फिगर आउट किया कि यू नो लेट मी गो एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन, तो उसको कुछ फिशी तब नहीं लगा, मतलब इन द इनिशियल डेज जब पूजा एक्चुअली रह रही थी, वो कियारा कभी सुरेश के घर ही नहीं गई थी. कियारा गई थी बट इट नेवर वाज लाइक, सो बेसिकली द अदर रूम वाज अ गाय लिविंग देयर ना, मतलब वैसे तो कोई लड़का ही रह रहा था. शी नेवर आस्क्ड कि कौन रह रहा है. अब कि वो मतलब लोगों को कुछ भी अपने को क्या है, कोई भी रह रहा वो नहीं होगी वहाँ पे फिजिकली एक्टिविटी, वो नहीं होगी ना, प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर. So Kiara is a very soft-hearted girl and she, मतलब सुरेश ने उसे दोबारा से बना लिया कि नहीं, that पूजा is just living there. इस बार पूजा ने क्या बोला? पिछली बार तो पूजा मुकर गई. पूजा ने तो अब तो डायरेक्ट बोल दिया ना कि मैं तो 1-1.5 महीने से यहाँ पे रह रही हूँ. जब रंगे हाथों ही पकड़ लिया कि पूजा वहाँ पे रह रही है, तो उसने बोला कि मैं तो 1-1.5 महीने से यहाँ पे रह रही हूँ. ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो कॉल पे बात कर रहे थे, सो सुरेश वॉजंट इन टाउन ना, तो जब कियारा और सुरेश की बात हुई तो सुरेश ने बोला कि मैं तो शी इज जस्ट बिन लिविंग हियर फॉर 4-5 days क्योंकि उसे जरूरत थी. ठीक है. और यार इतना ही था तो पहले से अगर अच्छा रिलेशनशिप था तो पता क्यों नहीं था उसके फ्लैट में कोई लड़की रह रही है. Exactly. He would have informed कियारा. फिर अब तो ब्रेकअप हो गया ना. हाँ, now they have broken up. So basically what, मेरे को एक जो बात जब ये करते हुए मुझे कियारा ने एक बात बोली which was I think very true is that she was like कि मुझे I don't need to see those two people sleeping together for me to actually figure out कि क्या हो रहा है, कि क्या सिचुएशन है, मैं कब तक विक्टिम बनी रहूंगी because this has already happened. हाँ. True. Obviously, and I think you know, to cheat with your partner you don't have to sleep with someone else. Lying is also cheating. Exactly. Hiding is also cheating. You don't have to be involved with some activities, you know, some particular activities to cheat on someone. Right. So that was of course exaggerated, but it was happening right in front of her eyes कि वो मुंह पे झूठ बोल रहा है, लड़की उधर से कुछ और बोल रही है, लड़का उधर से कुछ और बोल रहा है. So I think it was very this thing कि अब हम इसके आगे कैसे move, like you know that thing कि अब मैंने एक बार I have shown you that you know कि मैंने तुम्हें एक बार माफ कर दी, मैं कितनी बार तुम्हें माफ करती रहूंगी is the point I feel. But let's break this you know sad माहौल, थोड़ी लाइटें जगाते हैं अब हम, brightness जगाओ because I have a very fun game planned out for you guys. Okay. Thank God for that. So you will be playing with us or No. It's for you both. So what is it like? It's would you rather. Okay, first Shefali and then Mohini. हाँ. ठीक है. So Shefali, the question for you is: would you rather be in coma for 5 years or jail for 10? Coma for 5 years. So Mohini, your first question is: would you rather have everyone read your thoughts or have everyone you know have access to your internet history? Oh my God. Everyone have access to my internet history. Okay, Shefali, sing in front of your favorite dancer or dance in front of your favorite singer? Obviously, dance. Exactly. दोबारा. Sing in front of your favorite dancer if you have one. Yes, or I would go for this option. Would you rather be chronically underdressed or overdressed for an event? Overdressed. So, be forced to sing along or dance to every single song you hear. Would you rather? Obviously, I would sing any day. Mohini, buy 10 things you don't need every time you go shopping or always forget the one thing that you do need when you go out. Forget the one thing that I do need. Would you only eat pizza for 1 year or not have pizza for 5 years? This is very difficult. Not having pizza for 5 years. Have people know all your details of your finances or all details of your love life? Oh my God. Ooh. Stevie, na? All details of my finances. Ooh. Shefali, find your soulmate or find your calling? Again, this is also tough. I want both the things. I think find my calling. Right now, I would really like to know कि क्या plan है. So, Mohini, confess to cheating on your partner or catch your partner cheating on you? Catch my partner cheating on me. Love your partner more or partner love you more? So I've read this. Choose the person who loves you more rather than whom you will love. And I'm sure if I get a person who loves me
very decently and I'm sure to love him back. Be able to work yourself or have a partner who works. Have a partner who works. Marry someone taller than you or with a great personality. Just someone taller than you, doesn't have to be extremely tall. Yeah, got that. Someone with a great personality. And okay, so Mohini, the last question that I have for you is: would you rather wear stilettos everywhere or go barefoot? Guys, stilettos में तो मैं चल ही नहीं पाऊंगी, तो फिर go barefoot. So guys, that was it for the would you rather, steamy would you rather. And I really enjoyed both of your answers. And we I would really say. enjoyed answering It was a them. very put together game. It was Yes. really nicely built by you. Good efforts, Manat. Very It good. takes मतलब काफी मन्नत ने टाइम लगाया क्वेश्चन Yes. बनाने में हाँ. as per our choices. हाँ, exactly. Good job. And I think we'll end the video right here and the audio too, obviously. So guys, please listen us on Spotify and rate us on Spotify. That would mean a lot. And subscribe to our YouTube channel because YouTube पे देख बहुत सब लोग रहे हैं, subscribe नहीं करें. Please guys, subscribe कर दो. It would really make our day. So शिवाली ने हाथ भी जोड़ दिए हैं, तो अब तो करना ही चाहिए. मन्नत ने भी जोड़े थे. अच्छा, मैं भी जोड़ती हूँ guys. Please subscribe. And with that, we'll see you guys next week. Also, हमने यहाँ पे अपना schedule announce नहीं किया. So every Wednesday the audio goes live on Spotify, and every Friday the video goes live on YouTube. So I Don't forget to watch our YouTube video As on well. Fridays. Yes. And don't forget to listen to us on Spotify on every Wednesday. And we love you. Bye. Bye.